यस ओके, तो लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी किए थे. ओके तो यस ये सब हमने किए थे ऑलरेडी. ओके शायद 16th वाला चल रहा था राइट है. यस सर 16th वाला चल रहा था. ओके ओके so just read this question carefully. The current flowing through the resistance of 2 ohm in the figure is ओके तो देखो 2 ओम का जो रेजिस्टेंस दिख रहा है उसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट. लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. दिस इज main branch and suppose it gets split up in 2 parts. There are 2 resistances of 10 ohm and 25 ohm. Then there is a resistance of 2 ohm here. ये 2 ohm का रेजिस्टेंस है और बाकी 5 ohm का रेजिस्टेंस इस तरफ है. ठीक है. एंड मेन ब्रांच में 1.4 एम्पियर इतना करंट जा रहा है. ठीक है. सो इट इज अ सिंपल क्वेश्चन which can be solved in the same way as we have solved it 15th one here. Okay, so that is current divider formula. यहाँ पे current divider formula यूज होगा. देखो the equivalent circuit of this can be drawn here like this. 1.4 ampere current is flowing through this main branch which gets split up in 2 parts in which there are 2 resistances here. Okay, तो यहाँ पे 2 resistances है जो कि एक्चुअली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये जो सिंगल रेजिस्टेंस है it is the effective resistance of this combination, series combination, and we know that in series combination the resistance just get add up together. So 10 plus 2 ये बन गया 12 ohm. Okay, and here also in this series series combination 25 plus 5 it will become 30 ohm. 30 ohm. Okay, yes. Now in order to find out the current in this individual branch, what we have to do is first of all we have to find out the ratio of resistances. What is it? Actually, the ratio is 2:5 sir. हाँ 6 से डिवाइड करेंगे 2:5. तो उसका उल्टा करेंगे तो बनेगा 5:2. And this 1.4 has to be split up in 2 parts which are in the ratio 5:2 here. So 5:2 रेशियो में बांटने के लिए इसको दोनों को 7 से डिवाइड करने का, जो कि 5 और 2 का एडिशन है. तो 5/7 of 1.4 will be the first branch current, and current in the second branch will be actually 2/7 of 1.4 again. So that this 7 ones are, and here it is 7 0.2, which is 5 into 0.2 becomes 1 actually. Okay, and here yes, again 0.7 ones are 7 0.2s are 0.4 sir is 0.4 actually. Okay, so देखो this 1.4 is getting split up in 2 parts in this way. The first part is 1 ampere and the second part is 0.4 ampere. This first part will flow through this upper resistance and the second part will flow through this lower portion of this circuit. अभी इसमें 1 ampere जो इस 12 ohm में flow हो रहा है, it will be same for both of these resistances because they are in series. Okay, तो ये जो 10 ohm में जाएगा वही 2 ohm में भी जाने वाला है. तो इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन में 1 ohm का करंट फ्लो हो रहा है. मतलब 2 ohm के अंदर कितना जा रहा है? 1 ohm जा रहा है. तो 1 ohm is going to be actually the final answer. Okay, तो we can just find it out in this way. और अगर तुमको चाहिए तो ये भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा दूसरे मेथड से अगर तुमको करना है, अगर ये मेथड अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो नॉर्मल किस तरह से वो किया जाता है वो मैंने पहले बताता हूँ. इन दोनों का पहले हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढना होगा. ठीक है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस टू? So 1/Rp is equal to 1/12 plus 1/30. So that we can just say this will be यहाँ पे 30 और 12 का LCM कितना आता है? देखो
30 और 12 का जीसीडी कितना है, 6 है। तो 6 के टेबल में 30 आता है 5 नंबर पे। तो उसी 5 से 12 को मल्टीप्लाई करो तो आएगा 60, बराबर। तो 60 is going to be the LCM, so we can just multiply it by 5, and here also we can just multiply it by 2. Okay, so that we can just get this 5 by 60, and this will be 2 by 60. Okay, so it will be actually 7 by 60, and this is 1 upon RP, so we can say RP is actually 60 by 7. Okay, ohm. So this is the value of RP. Now we can just try to find out the potential difference first. The total potential difference is actually going to be the product of current I into RP, that is the effective resistance of this combination. तो करंट जो है 1.4 है इंटू ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है 60 by 7, ये हम यहाँ पे डाल देंगे। तो उससे हमको मिल जाएगा द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन टू बी सिंपली 7 1 जा 7, 0.2 जा, so 0.2 into 60 becomes 12, right? So 12 volt is the voltage across the whole combination. And now अगर इन दोनों के बीच में अगर 12 volt इतना वोल्टेज है, तो using this voltage and resistance we can find out the current in each branch. So current through 12 ampere, sorry 12 ohm. तो इस 12 ohm वाले रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट that is 12 upon its own resistance, that is 12, which is again 1 ampere, which we already found it out. Okay, and the same way here the current in the second resistance, that is of 30 ohm, can be found out to be simply the voltage which is same as 12, that is to be divided by 30 ohm, that is the resistance in its branch, जो कि यहाँ पे अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा एंड 6 5 जा, सो 2 by 5 मतलब वो 0.4 एम्पियर हो गया, जो कि वहां पे भी हमको मिला हुआ ही ऑलरेडी। ठीक है ना, तो दिस इज द नॉर्मल मेथड बाय विच यू कैन गो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस मेथड हियर। अदरवाइज अगर ये अंडरस्टैंड करते हो तो ये तो बहुत सिंपल है, नो डाउट, बट जस्ट प्रैक्टिस इट। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स के ये उसको प्रैक्टिस करो ठीक से। यस, लेट अस टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, let's see the next question. Okay, 17 वाला चेक करो। A 3 volt battery with a negligible internal resistance is connected in series as shown in the figure. The current I in the circuit will be, अच्छा in the circuit मतलब main branch current we have to find out. Okay, तो हमको main branch का current ढूंढ के निकालना है। देखो, so how to find out the main branch current? Simply the total voltage of the battery upon the total resistance is called as the main branch current. Remember, so this, see, this is a 3 volt cell which is connected here, and the resistances are like this. This is the first resistance which is connected in this way, and बाकी दो resistances जो है वो इस तरह से connect किए हुए हैं। Yes, okay, and each of these resistances are of 3 ohm each, and this is also of 3 volt. Okay, so see here, this is the circuit diagram. Okay, so सबसे पहले देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ से जब करंट स्टार्ट होगा इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे स्प्लिट हो गया जाएगा ना दो पार्ट्स में। यस सर, 6 ohm। यस, अरे 6 कहाँ को, ये कोई करंट तो नहीं है ना, ये तो रेजिस्टेंस है। ठीक है, हाँ अभी देखो करंट जो भी मेन ब्रांच में करंट जा रहा है उसको अगर हम बोल देते हैं सपोज आई, ओके आई, वी डोंट नो हाउ मच इट इज, बट व्हाटएवर इट मे बी विल जस्ट स्प्लिट अप इन 2 पार्ट्स, and whatever current will just flow through this 3 ohm will just collected here, यहाँ पे वो चला जाएगा, और इस तरफ जो जाएगा वो यहाँ से सिर्फ मुड़ जाएगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ बेंड हो रहा है, एंड तो नहीं हो रहा है ना।
तो इसलिए ये सर्किट जो है वो यहाँ पे बेंड होने का मतलब वो बेंड ना भी हो तो भी उसको हम ऐसा दिखा सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में दिखा सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में आ गए, ये समझ सकते हो ठीक से। इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम ऐसा बना सकते हैं, देखो दिस इज द बैटरी विच इज केप्ट एज इट इज and a 3 ohm resistance is connected across this battery first, and then there are two resistances, each of 3 ohm are just connected in parallel to this 3 ohm here. ये 3 ohm का और ये 3 ohm का, ये दोनों सीरीज में है, और इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो इसको पैरेलल में है। ऐसा सर्किट हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो चेक करो एक बार ठीक से। दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D. So we can just call it as this as A, this will be B, okay. B से दो निकल रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ जा रहा है। तो इस पॉइंट को नाम देने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट एक्चुअली ये है, C है वो, ठीक है। और D जो है वो ये वाला पॉइंट है, क्योंकि ये और ये सेम ही हो गया एटलीस्ट, ठीक है। तो इस तरह से है। या चलो अगर तुमको चाहिए तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, ये जो है इसको डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइन कर दो और इसको भी हटा के सीधा इसको डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइन कर दो, ऐसा भी चलेगा। सो यू कैन जस्ट कॉल दिस एज अ D एंड दिस एज B, नो डाउट। तो अभी समझा ठीक से, ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है और ये उसके पैरेलल में है। तो अभी देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 6 होगा, ओके। तो अगर इन दोनों को हटा दिया जाए और इसको एक ही रेजिस्टेंस से अगर रिप्लेस कर दिया जाए जो कि 6 ओम का है, तो वो 6 ओम इस 3 ओम के साथ पैरेलल में लग रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे 6 और 3 का पैरेलल कितना होता है, 2 बनता है। समझा कैसे? यस, बिकॉज 3 का डबल ही तो है ना ये 6। तो जब एक दूसरे का डबल होता है तो बड़े वाले का क्या करने का, 1/3 करने का होता है, राइट, 1/3। तो ये हमने 6 को 1/3 कर दिया तो वो 2 बन गया। या अगर तुमको चाहिए तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नो डाउट। 1/rp इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, इट गिव्स 1/rp इज इक्वल टू, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, देखो ये 2 into 2 तो 2/6 प्लस 1/6 which actually gives 1/rp is equal to 3/6, मतलब 1/2। तो rp becomes equal to 2. If you just take the reciprocal on both sides, we can get this value of rp here, okay। तो rp का वैल्यू वैसे भी हमको 2 ही मिल रहा है। चलो ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। ये एक बैटरी जिसका 3 वोल्ट ये वोल्टेज है, और इसके अक्रॉस हमने एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया है जिसका वैल्यू 2 ओम के बराबर है। अभी मुझे बताओ, देखो एक ही अकेला ही है ना ये रेजिस्टेंस अभी, तो एक बैटरी के अक्रॉस अगर हम 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस 3 वोल्ट की बैटरी में से कितना करंट खींचेगा, जल्दी बताओ। करंट का फॉर्मूला क्या है? VR, I is equal to VR. V अपॉन R, करेक्ट है। R. I इज इक्वल टू V अपॉन R, ओके। तो V कितना है, देखो 3 डाल दो यहाँ पे। R कितना है, R मतलब RP, मतलब 1.5. yes, 1.5 ampere, that's all. This is actually going to be the current in the circuit. सर्किट मतलब मेन ब्रांच, तो मेन ब्रांच के अंदर ये 1.5 इतना करंट जाएगा। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 3 ओम रेजिस्टेंस? सर 1 एम्पियर। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे किया तुमने ये 1.5 को तुमने, यस, कैसे रेशियो में बांटा, 1:2, मतलब 2:1 रेशियो में बांटा, राइट, 2:1 रेशियो में। तो 2:1 रेशियो में बांटने का मतलब 2/3 टाइम्स ऑफ 1.5 करने का। तो 2/3 टाइम्स ऑफ 1.5 मतलब 1, that's it. So it becomes 1 ampere you will pass through this 3 ohm resistance, and 0.5 ampere will pass through this another, that is 6 ohm resistance here. चलो वैसे वो पूछा तो नहीं है, but फिर भी you can just find it out. Just take the screenshot of this. सर हाँ बोलो। सर जो 6 ओम है सर वहां पे 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा सर। अरे 2 एम्पियर तो इसमें है ही नहीं, तो कैसे फ्लो होगा? मेन ब्रांच में ही 2 एम्पियर नहीं है। अगर सर 3 एम्पियर रखेगा तो सर यहाँ पे, किधर सर यहाँ पे इस वाले ये जो ना AB सेकंड वाली डायग्राम, मेन ब्रांच, अगर यहाँ पे 3 रहेगा, मेन ब्रांच में 3 जाएगा? नहीं सर, मतलब अगर यहाँ पे 3 रखेंगे करंट,
3 वोल्ट, तो यहाँ पे 1 जाएगा और यहाँ पे 2 जाएगा, मतलब हाँ, अगर यहाँ पे 1 तो ना, एम्पियर और यहाँ पे 2 हाँ एम्पियर। अगर होगा तो ना, हाँ हाँ लेकिन है तो नहीं ना, 1.5 एम्पियर वो करंट फ्लो हो रहा है, और वो कैसे मिला हमको, समझा क्या ठीक से? यस क्योंकि इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो तो 2 ओम है, तो 2 ओम का रेजिस्टेंस 3 वोल्ट वाले बैटरी में से 1.5 एम्पियर इतना ही करंट खींच पाएगा, 3 एम्पियर तो कभी नहीं खींच पाएगा, क्योंकि यस। रेजिस्टेंस ही 2 ओम है। ठीक है ना? ओके, चलो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। यस, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको दिख रहा है, बट एक्चुअली है नहीं। वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल करंट सप्लाइड बाय द सर्किट बाय द बैटरी। तो बैटरी के द्वारा कितना करंट मिल रहा है, तो निकल रहा है, वो हमको ढूंढ के निकालना है। मतलब सेम सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी ऑलरेडी सॉल्व किया है। पहले हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढ के निकालना पड़ेगा, और वो होने के बाद फिर करंट निकालना पड़ेगा बाय जस्ट डिवाइडिंग द वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। ओके, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। There is a circle like this, and there is a battery here, of 6 volt. Okay, and there is a resistance, ये एक ऐसा है और एक ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे एक और यहाँ पे दो ऐसे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, और इधर इधर भी है। ओके, ये है 2 ओम का, ये वाला है 6 ओम, दिस इज ऑफ 1.5 ओम, एंड दिस वन इज 3 ओम। ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट सर्किट, क्योंकि इसमें सीरीज पैरेलल ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। इफ यू जस्ट नेम ऑल द पॉइंट्स, दिस पॉइंट इज नेम्ड एज सपोज ए। ओके, अभी ए और ये जो पॉइंट है, इनके बीच में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। सो वी कैन जस्ट कॉल दिस आल्सो एज ए ओनली, नो नीड टू गिव एनी अनदर नेम टू दैट पॉइंट। ओके, तो ये दोनों पॉइंट सेम ही हो गए, ए ही बोल सकते हो उसको। ठीक है, बट ये जो है वो तो अलग है ना, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे बी, और ये भी अलग है, इसको हम बोलना पड़ेगा सी। ओके, तो अभी देखो, अगर हम डायग्राम, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं, तो ये बैटरी जो है वो हम पहले ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये बन गया हमारा बैटरी। ठीक है, 6 वोल्ट का बैटरी। इसका एंड पॉइंट्स कौन कौन है? एक ए है और दूसरा सी है। दिस इज ए एंड दिस इज सी। ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू सी द रेजिस्टेंसेस, फिल द रेजिस्टेंसेस। अभी बी किधर है? तो बी, टेक दिस बी हियर समवेयर। ओके, यहाँ पे किधर तो भी बी है सपोज। ठीक है, तो अब देखो, ये जो रेजिस्टेंस है 2 ओम वाला, वो ए और बी के बीच में लग रहा है, तो इसलिए ये ए और इस बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दो, जिसका वैल्यू है 2 ओम का। करेक्ट है? ठीक है, अभी देखो ये 6 ओम का जो रेजिस्टेंस, अच्छा ये हो गया, इसको सर्कल कर देंगे तो ये हो गया, हमको पता चलेगा। Sir, can't we add up the 6 plus 12 and join it to AB? 6 प्लस 2. 6 ohm plus 2 ohm. नहीं, अरे वो पैरेलल में है, पैरेलल में। हाँ अच्छा, वही तो हमको तो समझना सीरीज है। में होता तो ऐसा होगा क्या? क्या क्या? अगर सीरीज में होता तो ऐसा हो जाता। हाँ हाँ, अगर सीरीज में होते तो फिर ऐड कर सकते हैं ना, लेकिन वो सीरीज तो में नहीं बल्कि पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो हाँ, इसलिए ये देखो, ए एंड ए, ये दोनों पॉइंट्स एक ही है, ये हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो ऑलरेडी एक है, लेकिन ये भी अगर एक हो जाए तो ये दोनों पैरेलल में आ गए। तो मतलब हमको ये 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो कौन से दो पॉइंट्स के बीच में लगाना है? ए और बी के बीच में। मतलब ऐसा बन गया वो, ये देखो ए और बी के बीच में ऑलरेडी एक है, और ये दूसरा भी उसमें ही लग गया। ठीक है, तो इसको ये 6 ओम का हो गया ऐसे। अभी तीसरा जो रेजिस्टेंस है 1.5 वाला, वो किस में लग रहा है? सी और बी के बीच में लग रहा है। करेक्ट है? तो ये देखो सी और बी के बीच में, मतलब ये हो गया हमारा 1.5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लग गया। और चौथा जो है वो ए और सी के बीच में डायरेक्ट है। 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है ना, वो सी और ए के बीच में, मतलब ये ए और सी, मतलब इनके बीच में डायरेक्ट लग रहा है, तो मतलब वो ऐसा हो गया।
बराबर है। ये हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस है एक्चुअली। यस। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये बीच का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है ना, वो हम ऐसा वर्टिकल ड्रॉ करेंगे और उसके सीरीज में ये वाला ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से कुछ हो सकता है वो। सपोज पॉइंट ए जो है वो हमने एज इट इज रखा, यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस और यहाँ से एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया और इनके सीरीज में तीसरा लग गया और इन सब के पैरेलल में चौथा है। ठीक है, अब इसमें से ये जो 2 है वो ये वाला है, ये 6 जो है वो उसके पैरेलल में है और ये 1.5 का जो है वो उनके सीरीज में आ रहा है और इन सब के पैरेलल में ये अकेला 3 लग रहा है। समझा ठीक से? ये सर्किट डायग्राम and this circuit diagram is just equivalent to each other, but just the thing is that this is easy to simplify. हो सकता है सर, हाँ क्या बोल रहे हैं? हो सकता है यहाँ कर, अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएं तो पैरेलल तो यहाँ पे 2 ओम होगा। किसमें? हाँ, ये 2 ओम और 6 ओम को अगर ये हाँ। पैरेलल में है तो इसको हाँ। हम करेंगे तो 2 ओम होगा यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, वो डबल थोड़ी है अभी, वो तो ट्रिपल है। समझा ठीक से? 1/3 का भी करने का, जब सिर्फ डबल होगा तब करने का। अभी 2 का डबल कितना होता है? 4 होता है, 4, 6 नहीं। ओके यस सर। हाँ, तो अभी देखो इसमें इनका दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए हमको वही करना पड़ेगा जो हमारे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6। ओके, ये अगर करेंगे तो अभी इसमें एलसीएम कितना मिल रहा है? 6 है। तो 6 बनाने के लिए इधर मल्टीप्लाई करो 3 से और इसको 3 आएगा, जिससे वो बन जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 3/6 प्लस 1/6, मतलब नहीं 2 आएगा। 4/6। अरे तो 2/3 मतलब उसका उल्टा कर देंगे तो हमको आरपी मिल जाएगा 3/2। 3/2। 1.5। हाँ मतलब 1.5। ठीक है, तो ये 1.5 बन गया। अच्छा, अभी इस सर्किट के अंदर ही चेंज करो, इन दोनों के बदले अकेला डाल देता हूँ 1.5 वाला, चलेगा ना? ठीक है, तो मतलब ये दोनों को हटा दिया, ये दोनों को हटा दिया और इसके बदले एक ही डाल दिया और उसका वैल्यू है 1.5 ओम। ओके, अभी देखो ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? ये दोनों हाँ, तो ये 1.5 Yes, और ये 3 1.5 मिलके क्या बनेगा? 3 बन जाएगा, राइट? तो इन दोनों को हटा देता हूं अभी और इन दोनों के बदले एक ही यहाँ पे लगा देता हूं जिसका वैल्यू है 3 ओम। अभी वो 3 और ये 3 ये दोनों तो पैरेलल में आ गए और कल ही हमने देखा था कि अगर दो इक्वल रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में लगते हैं तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बनता है? उनका आधा बनता है, राइट? आधा 1.5 हाँ 0.5 हाँ 1.5 0.5 है। 1.5। देखो ये बैटरी अपनी जगह पे है, इसके अक्रॉस एक ही रेजिस्टेंस लग गया जिसका वैल्यू है 1.5 ओम। ओके, तो ये हमको मिल गया और बैटरी का वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट है। अभी ये 1.5 ओम का रेजिस्टेंस इस 6 वोल्ट बैटरी में से कितना करंट खींच पाएगा? यस, वेरी गुड, 4 एम्पीयर खींच पाएगा। वी कैन जस्ट सी I इज इक्वल टू V/RP। ओके, तो I इज इक्वल टू V कितना है? 6 है, तो ये डाल दिया 6 इधर। RP कितना है? 1.5 है, तो ये 1.5 डाल दिया इधर, जिससे हमको मिलेगा 4 एम्पियर। दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, so this is the last one. चलो ठीक है, सो अच्छा, इसमें करंट वाले चैप्टर के अंदर तुमको शायद मैग्नेटिक इफेक्ट भी था, राइट है ना? यस था सर। हाँ ठीक है, तो उसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके एमसीक्यूज फिर नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे।
ओके सो इसमें हमने क्या देखा है, करंट का जो दूसरा इफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो उसके अंदर देखा जाता है कि whenever current flows through some wire there is a magnetic field produced around it. Okay, so for example, if suppose this is the wire and suppose the current flows through this wire from left to right like this, तो अगर ऐसा करंट फ्लो हो रहा है तो होता क्या है ना कि यहाँ पे रखा हुआ जो मैग्नेटिक नीडल है, यहाँ पे अगर सपोज हमें कोई भी मैग्नेटिक नीडल अगर रख देंगे, so that needle will just get deflected due to the magnetic field which is produced due to this current here. And ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन कैसा होता है, तो वो हम निकाल सकते हैं आराम से बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल याद रखो, जिसमें अगर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में हमको थंब अरेंज करना है, एंड कर्व फिंगर्स विल एक्चुअली गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड in such a way that it will form the loops like this. तो इस टाइप के लूप्स वो फॉर्म करता है। ठीक है, मतलब बाहर में सामने वाले पॉइंट पे अगर देखेंगे तो इट विल बी डाउनवर्ड्स, अगर नीचे वाले पॉइंट पे रहेंगे तो इनवर्ड्स, मतलब समझो ऐसा वर्टिकल में इस थ्री डायमेंशन में हम देखेंगे यहाँ पे, सपोज दिस इज द करंट हियर एंड करंट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दिस वे। ओके, सो हाउ विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, it will be downwards. Okay, at this point it will be inwards, at this point it will be upwards, at this point it will be frontwards, मतलब towards you. Okay, तो ऐसे सर्कल फॉर्म होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, फॉर्मिंग द लूप्स इन दिस वे। तो अगर सपोज करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड विल फॉर्म लूप्स लाइक दिस। ठीक है, तो इस टाइप के हॉरिजॉन्टल लूप्स वो फॉर्म करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये राइट हैंड रूल बताता है। ये हम निकाल कैसे सकते हैं, अगर इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमारा राइट हैंड लेने का, उसका थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन में अरेंज करने का, और उससे जो भी डायरेक्शन हमको मिलेगा, ये वाला कर्व फिंगर्स का जो डायरेक्शन मिलेगा, तो वो डायरेक्शन हमको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, ओके, इन द स्पेस। At this point in the space, it will be directed inwards like this. At this point, it will be directed like this towards me. And at this point it will be directed in this way. ठीक है, so in this way. तो ये इस तरह से हमको हर पॉइंट पे क्या करना है, ये राइट हैंड रूल ही अप्लाई करते जाना है कंटिन्यूअसली, हर each and every point at every point we have to apply the right hand rule like this and get the direction of magnetic field due to this current carrying conductor here. Okay, yes, तो ये एक बात है। दूसरा, अगर सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर अगर सर्कुलर है, सर्कुलर देखो ऐसा अगर सर्कुलर अगर बनता है करंट कैरिंग कंडक्टर, सो सपोज द करंट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इट सर्कुलेट्स इन दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हियर, देन एट द सेंटर ऑफ दिस मैग्नेटिक सेंटर ऑफ दिस कंडक्टर व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो वी कैन फाइंड इट आउट अगेन बाय राइट हैंड रूल। ओके, राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो, लेकिन अभी दिस टाइम you have to just curl your fingers in the direction of the current. Okay, fingers को हमको current के direction में turn करना है, and whatever is the direction given by the thumb will actually be the direction of magnetic field at this point. ठीक है, that means the magnetic field will be outwards in this case. But if suppose there is another conductor in which the current is flowing in this clockwise direction in this way here, तो clockwise मतलब क्या होता है, घड़ी के कांटे जैसे घूमते हैं सेम डायरेक्शन, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इन दैट केस वी कैन अगेन अप्लाई द राइट हैंड रूल एंड वी कैन जस्ट टर्न आवर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट एंड गेट द डायरेक्शन ऑफ थंब टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हियर। तो यहाँ पे सेंटर्स पे डायरेक्शन कौन सा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इनवर्ड्स, वी कैन जस्ट से ओके, इनवर्ड्स। देखो अगर करंट क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड्स, और अगर करंट करंट अगर क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी इनवर्ड्स। यस, ओके, तो ये एक बात है, दिस इज द डायरेक्शन। तो दोनों के लिए हमने राइट हैंड रूल यूज किया, देखो ठीक से, लेकिन फर्स्ट जो राइट हैंड रूल यूज किया था उसके अंदर हमने करंट के डायरेक्शन में थंब अरेंज किया था, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए फिंगर्स यूज किए थे। लेकिन सेकेंड वाला जो अभी जो हमने राइट हैंड रूल यूज किया उसके अंदर करंट के डायरेक्शन में हमने फिंगर्स टर्न किए थे, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको थंब से मिल रहा था। ठीक है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू, रिमेंबर। एंड देयर इज अ सोलेनॉइड।
सोलेनॉइड जो होता है इस तरह से होता है, मतलब कॉइल, एक तरह से पकड़ लो उसको, कॉइल ही पकड़ लो, ठीक है। तो कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो होता है, सपोज ये पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव के साथ हमने करंट करके रखा है, तो करंट विल जस्ट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस सोलेनॉइड एंड इट विल जस्ट जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस। इट विल बी डायरेक्टेड लाइक दिस, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा होता है। लेफ्ट टू राइट सर ना, क्या in upward direction is go to left to right and downward it's go करंट right का to डायरेक्शन, left. हाँ लेफ्ट टू राइट है करंट का, बट मैग्नेटिक फील्ड का देखो और कैसा है। सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड इन दिस वे, ठीक है। तो इस तरह से वो डायरेक्टेड होगा, याद रखो ठीक से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर। वेट अ मिनट। ओके ठीक है, चलो। सो दिस ऑल अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। सो उसके आगे का जो पार्ट है वो हम कल या परसों मंडे के लेक्चर में करेंगे। यस।